बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने ग्रेटर हैदराबाद के अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल, कॉरपोरेटर्स और साबिक कॉरपोरेटर्स से मुलाकात की। जुबली हिल्स हल्के की ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में अपनाई जाने वाली हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल करने के लिए बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना भवन में ग्रेटर हैदराबाद के अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल, कॉरपोरेटर्स और साबिक कॉरपोरेटर्स का एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने इस मौके पर बीआरएस के तमाम एमएलएस, एमएलसीज, कॉरपोरेटर्स और साबिक कॉरपोरेटर्स को ज़रूरी हिदायतें जारी की और इंतखाबी मुहिम में तेज़ी लाने और पार्टी के उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ की कामयाबी को यकीनी बनाने के इक़दाम करने की हिदायत जारी की। మనమేమో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఒక సైడ్లో ఒక తిరిగి ఓటేసినాం. ఊర్లలో కొంతమంది మోసపోయినరు. మీకు ఇది ఇస్తాం అది ఇస్తాం అని చెప్పి అరిచేతుల స్వర్గం చూపెడితే ఆయనతో మోసపోయినరు, ఓట్లు వేసినరు. వీళ్ళందరికంటే ఎక్కువ బాధపడుతున్నది ఊర్లలో ఉండే మా రైతు బిడ్డలు, రైతు కుటుంబ సభ్యులే బాధపడుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళు అంటుర్రు, వాళ్ళు చెప్తున్నారు మాకు ఫోన్లు చేసుకుంటా, అన్నా మేము కూడా జూబ్లీ హిల్స్కి వస్తాం, మేము కూడా ప్రచారం చేస్తాం, మేము మోసపోయినాం, మా తిరిగి మీరు కూడా మోసపోవద్దు అని చెప్తామని చెప్పి వాళ్ళు కూడా అంటూ ఉన్నారు. దయచేసి ఇక్కడికి వచ్చిన మా ఆడబిడ్డలకు నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే, ఎలక్షన్లు వస్తాయి పోతాయి, నాయకులు అల్టిమేట్గా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే నాయకుడు పార్టీ యొక్క లక్షణం చూడాలి, వాళ్ళ నీతి కూడా చూడాలి. ఇలా ఎవరు దేనికి లేవడ్డారో కూడా మీరు ఆలోచన చేయాలి. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లుండే పరిస్థితి ఇవాళ ఎట్లయింది మీరు ఒక్క నిమిషం. 2 ఏళ్లలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఒక్క మంచి పని ఏదన్నా ఒక్కటి చేసిరా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. ఏమైనా గట్టిగా అడిగినాం అనుకో కాంగ్రెస్ వాళ్ళను ఒకటే చెప్తారు, ఫ్రీ బస్సు పెట్టినాం కదా అంటారు. ఫ్రీ బస్సు నేనేమంటున్నా అంటే మేము దానికి ఖిలాఫ్ కాదు, కానీ కుడి చేత్తో నుంచి ఎడమ చేత్తో తీసుకునేది ఆడోళ్ళకి ఫ్రీ అట, మరి మగోళ్ళకి డబుల్ రేట్ అట. ఇది ఎక్కడి రీతి? అది ఇచ్చినట్ట తీసుకున్నట్ట? ఏమన్నా ఇచ్చినట్టేనా? ఆడోళ్ళకి ఫ్రీ, మగోళ్ళకు డబుల్ టికెటు, పిల్లలుంటే వాళ్ళ బస్ పాసులు కూడా 25% పెంచారు. అప్పుడు పెరిగినట్ట లాభం జరిగినట్ట? ఆలోచన చేయరు మీరు కూడా. అట్లే ఇంకొక మాట కూడా మీరు ఆలోచన చేయండి. ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు, పార్టీలు ఎలక్షన్ల ముందు మేనిఫెస్టో పెడతారు. మేనిఫెస్టో అంటే ఏంది? మనకి ఇప్పుడు ఎట్లయితే ముస్లింలకు ఖురాన్ ఉంటుందో, హిందువులకు భగవద్గీత ఉంటుందో, క్రిస్టియన్లకు బైబిల్ ఉంటుందో, ఒక రాజకీయ పార్టీకి మేనిఫెస్టో అంటే గట్ల. అంటే నీకు అది నువ్వు దాని మీదనే ప్రమాణం చేసి ఇగో ఇవన్నీ నేను చేస్తా అని చెప్పి ప్రజల దగ్గర ఓట్లు తీసుకొని అధికారంలోకి వస్తావు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు? ఎన్ని చెప్పిర్రు? గ్యారంటీ కార్డులు అన్నారు, ఇంటింటికి కార్డులు వంచిరు. వచ్చినాయి ఆ కార్డులు? అప్పుడు, ఇప్పుడు కాదు. గ్యారంటీ కార్డులు అని చెప్పించారు, యాదుకుందా? हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा कि जुबली हिल्स में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद हल्के के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने जुबली हिल्स हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के लिए हफ्ते को इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि नवीन यादव जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वो एक नौजवान कायद हैं और हरकियाती कायद हैं और यहाँ के लोग इस उम्मीद के साथ कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए तैयार है कि नवीन यादव काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स में कांग्रेस के उम्मीदवार के जीत जाने के बाद हल्के के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। कांग्रेस की जीत के बाद अवाम तरक्की की तवक्को कर रही है। जो आज जुबली हिल्स का बाईपोल में कांग्रेस का प्रत्याशी नवीन यादव नौजवान है और काम भी करेगा, इसीलिए यहाँ की जनता एक उम्मीद के साथ कांग्रेस को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, क्योंकि जो 10 साल में एक डबल बेडरूम भी नहीं हुआ और यहाँ के मोहल्लों में बहुत सारे इश्यूज है, कुछ भी नहीं बना। तो कांग्रेस के आने के बाद बहुत सारे इश्यूज जुबली हिल्स में रिजॉल्व हो गए, उसका एक रास्ता हुआ और 200 यूनिट का बिजली मुफ्त में मिल रहा है, बारीक चावल मिल रहा है, रेशन कार्ड नया मिल रहा है और वुमेन बहन सब बस में फ्री घूम रहे हैं। ये सब चीज को देख के यहाँ की जनता, जैसा कंटोनमेंट हैदराबाद में प्रीवियसली बाई इलेक्शन था वहाँ कांग्रेस को जिताया है, यहाँ भी कांग्रेस को जिता के वो लोग डेवलपमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी कादरी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन और सीईओ मोहम्मद असदुल्ला के दरमियान पाए जा रहे इख्तिलाफात को दूर करने पर जोर दिया है। मौलाना खैरुद्दीन सूफी कादरी सदर नशीन ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी
ठप हो जाने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं और बहैसियत सदरनशीन वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं। मौलाना सूफी कादरी ने कहा कि चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और CEO मोहम्मद असदुल्लाह के दरमियान कुछ इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड के कामकाज ठप होकर रह गए हैं। उनका कहना था कि बोर्ड के कामकाज के लिए कुल वक्ती CEO की तकर्रुरी का मुतालबा किया जाता था और अब कुल वक्ती चेयरमैन की तकर्रुरी का मुतालबा किया जा रहा है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज का वक्त करीब आने और वक्फ बोर्ड के 2 जिम्मेदारान के दरमियान इख्तलाफात पाए जाने पर सूफी उलमा कौंसिल के सदर ने सवाल किया है कि क्या दोनों की वजह से मुसलमान 36,000 वक्फ जायदादों से महरूम हो जाएंगे। मौलाना सूफी कादरी ने दोनों से आपसी इख्तलाफात को दूर करते हुए वक्फ बोर्ड और वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। उन्होंने हैदराबाद की जी असर शख्सियात से भी सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और असदुल्लाह के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है ताकि मिल्लत एक बड़े नुकसान से बच सके। और वक्फ बोर्ड में करीब 4 महीने से कोई काम जो है ना नहीं हुआ, बल्कि हमेशा ये कहा गया कि मुस्तकिल CEO का तकर्रुर ही इसका वाहिद हल है। तो अब यहाँ पर मुस्तकिल CEO साहब का तकर्रुर कर दिया गया, लेकिन अब इसके बाद भी इसके ताल्लुक़ से वक्फ बोर्ड एक गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रहा है। तो यहाँ पर एक मिसल मशहूर है कि 2 मुल्लाओं के बीच में मुर्गी मुर्दार हो जाती है। तो यहाँ CEO साहब और चेयरमैन साहब, ये दोनों के बीच में आवाम को नुकसान हो रहा है, आवाम को नुकसान हो रहा है। अब देखिए, आप उम्मीद पोर्टल जो है वो दिसंबर की 6 या 7 तारीख तक उसका वक्त है और करीब जो है ना 36,000 ऐसे जायदादें हैं जिनको उम्मीद पोर्टल में दाखिल करना है और कई बारगाहें हैं, मसाजिद है और ख़ुद वक्फ बोर्ड के ज़ेरे कंट्रोल भी कई जो है ना मसाजिद है, दरगाहें हैं। और रियासती वजीर सीता अक्का ने आंगनवाड़ी मराकज़ को दूध, अंडे, दालें, मियारी तेल और चावल की फराहमी में कोई कोताही न बरतने की हिदायत दी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में रियासती वजीर सीता अक्का ने ख़वातीन और बच्चों की बहबूद के महकमों की स्कीमात की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि आंगनवाड़ी मराकज़ को दूध, अंडे, दालें, मियारी तेल और चावल जैसी अशिया की फराहमी में कोई कोताही ना बरती जाए। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर सप्लायर्स ने गफलत बरती तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकाम से कहा गया है कि वो गफलत बरतने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी कर उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दें। सीता अक्का ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों, हामिला ख़वातीन और माओं को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की फराहमी में किसी भी सूरत में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तेलंगाना को बचपन की शादियों से पाक रियासत बनाने के लिए इक़दामात करने की हिदायत दी गई है। ओहदेदारों से कहा गया है कि वो हर ज़िले में ख़ुसूसी मुहिम चलाएं। तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार और कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने तेलंगाना लेजिस्लेचर स्टैंडिंग कौंसिल मुकर्रर किए गए तुलसी राज गोकुल से मुलाकात की। हाईकोर्ट के एडवोकेट तुलसी राज गोकुल को तेलंगाना लेजिस्लेचर स्टैंडिंग कौंसिल मुकर्रर किया गया है। लेजिस्लेचर स्टैंडिंग कौंसिल के तौर पर जिम्मेदारियां संभालने के बाद हफ्ते को कानून साज असम्बली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार और कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने उनसे मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। आपको बता दें कि तुलसी राज गोकुल ने विकाराबाद ज़िले के निज़ाम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और पी रामी रेड्डी लॉ कॉलेज से कानून की तालीम हासिल की। वो पिछले 30 सालों से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट्स में वकील के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो आइन और कानून साजी के उमूर के माहिर हैं और कानूनी शोबे में वसी तजुर्बा रखते हैं।
शहर हैदराबाद में साउथ ईस्ट जोन डीसीपी एस चैतन्या पर हमला करने का वाक़या पेश आया। ज़रा ने बताया, हफ्ते की सपहर डीसीपी साउथ ईस्ट जोन एस चैतन्या पर हमला करने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए हमलावर पर गोली चलाई गई। पुलिस की गोली चलाने के नतीजे में एक मोबाइल फ़ोन सारिग ज़ख्मी हो गया। बताया जाता है कि मज़कूरा शख्स ने मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की थी और जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने अफसरान पर हमला करने की कोशिश की। इसी दौरान डीसीपी साउथ ईस्ट एस चैतन्या कुमार ने उस शख्स पर गोली चलाई। ज़ख्मी शख्स को इलाज के लिए खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने बीआरएस के दौरे हुकूमत में शोहदा और कारकुनान के लिए जद्दोजहद न करने पर शोहदा और कारकुनान के अहले खाना से माफ़ी मांगी। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने हफ्ते को जागृति जन्म बाटा के आगाज से कबल नामपल्ली में यादगार शोहदा पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया और उन्होंने बीआरएस के दौरे हुकूमत में शोहदा और कारकुनान के लिए जद्दोजहद न करने पर अवामी मुआफ़ी भी मांगी। सहाफ़ियों से बात करते हुए जागृति की सदर ने कई सनसनीखेज तबसरे किए। उन्होंने कहा कि कई मौक़ों पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की खातिर 1200 लोग शहीद हुए हैं और सिर्फ 500 शहीदों के ख़ानदानों को मुलाजिमतें फराहम की गई हैं, लेकिन कारकुनान के साथ इंसाफ नहीं किया गया। उनका कहना था कि अगरचे कि वो वज़ीर नहीं हैं, लेकिन वो शहीदों के अहले खाना के लिए इंसाफ का मुतालबा करती रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं अवामी तौर पर मुआफ़ी मांगती हूँ और जब तक कारकुनान को इंसाफ नहीं मिल जाता वो तब तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। कि कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि शोहदा के अहले खाना को 1 करोड़ रुपये दिए जाएं। वरंगल के सरकारी अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी के सबब 2 बच्चों को एक ही सिलेंडर से ऑक्सीजन फराहम की गई। तेलंगाना के कई सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। अस्पताल आने वाले मरीजों को मुश्किलात उठाना पड़ रहा है। वरंगल के एमजीएम सरकारी अस्पताल से सामने आए एक वाक़े में अस्पताल के अमले ने 2 मासूम बच्चों को एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन फराहम की। इस वाक़े ने अस्पताल में सहूलियात के फुकदान और लापरवाही को उजागर किया है। बताया जाता है कि दोनों बच्चों की हालत नाजुक थी और दोनों को ही ऑक्सीजन फराहम करने की ज़रूरत थी, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी के बाद एक ही सिलेंडर से दोनों को ऑक्सीजन दी गई। बच्चों को तिब्बी मुआयने के लिए दूसरे वार्ड में ले जाने के लिए अस्पताल का अमला भी मौजूद नहीं था। वालिदैन को खुद अपने हाथों से ऑक्सीजन सिलेंडर उठाए अपने बच्चों को दूसरे वार्ड ले जाते देखा गया। मरीज के रिश्तेदारों ने अस्पताल इंतजामिया पर संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए कहा कि यही तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों की हकीकी तस्वीर है, जहां गरीब मरीज खुद अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के कई ज़रायों पर ये वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन सरकारी सतह पर इस वाक़े पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया गया है। अमृत भारत स्कीम के तहत सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने के इक़दामात जारी, 46% काम मुकम्मल कर लिए गए। मरकज़ी हुकूमत की अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन को साफ़ सुथरा और मुसाफिरीन के लिए सहूलत बख्श बनाने के काम जारी हैं। रेलवे स्टेशन को असरी बनाने के लिए 714.7 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और 46% काम मुकम्मल हो चुके हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म की इमारत को भी मुकम्मल कर लिया गया है। आपको बता दें कि मुसाफिरीन के लिए वेटिंग हॉल्स, बैतुल खलाएं, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम की जाएगी। करनूल में पेश आए खौफनाक बस हादसे के बाद एक और बस हादसे का शिकार हो गई। पैदाम्बरपेट आउटर रिंग रोड पर बेकाबू बस उलट जाने से कई मुसाफिर जख्मी हो गए। करनूल में क़यामत खेज़ बस हादसे के अगले ही दिन एक और बस हादसे का शिकार हो गई।
अंबरपेट आउटर रिंग रोड पर एक ट्रैवल्स बस उलट गई। हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि बस मियाँपुर से गुंटूर जा रही थी। जब पेदा अंबरपेट आउटर रिंग रोड जंक्शन पर बस का ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और बस रेलिंग से टकराकर सड़क की एक जानिब गिर गई। हादसे के वक्त बस में 15 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 6 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर DRDO अपोलो और हयात नगर के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। मोहम्मद अहमद नक्शबंदी अमीर तहरीक सदाए इस्लाम ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुसलमानों के हुकूक देने और मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करने की ख्वाहिश की है। मुसलमानों के हुकूक और शान व अज़मत के ताल्लुक़ से मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी अमीर तहरीक सदाए इस्लाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों ने आज़ादी के वक्त मुल्क के लिए अपनी खिदमत और जान व माल का नजराना पेश किया। मुसलमान इज़्ज़त और शान व शौकत के साथ मुल्क में रहते आए हैं, लेकिन मुल्क में नफ़रत का बाजार गर्म हो रहा है और शहरियों में नफ़रत फैलाई जा रही है। उन नफ़रतों को ख़त्म करने और आपसी मोहब्बत और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। सीनियर IAS अफसर सैयद अली मुर्तज़ा रिजवी के VRS लेने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि IAS अफसर पर दबाव डाला गया, उनकी ईमानदारी और दियानतदारी कबूल नहीं की गई और उन्हें बदउनवानी में मुलविस होने पर मजबूर किया गया। मौलाना अहमद नक्शबंदी ने दियानतदार अफसर को तमगा देने के बजाय मुलाजिमत से सुबुकदोश होने पर मजबूर करने पर अफसोस जाहिर किया और कहा कि अगर मुसलमान अफसरान के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा तो अवाम में हुकूमत के ताल्लुक़ से बदगुमानियाँ पैदा हो जाएंगी। उन्होंने मुसलमानों को काबीना में नुमाइंदगी ना देने का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमानों पर मुसलमान उम्मीदवारों को वोट न देने का इल्ज़ाम लगाया गया। अमीर तहरीक सदाए इस्लाम ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से ख्वाहिश की है कि वो मुसलमानों के हुकूक दें और मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करें। उनका कहना था कि पेशरो BRS हुकूमत ने मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा किया था और उनके हुकूक भी पूरे किए थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से भी तवक्को है कि वो मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि मुसलमानों के हुकूक के ताल्लुक़ से, मुसलमानों की शान और अज़मत के ताल्लुक़ से चंद देर आप हजरात को यहाँ पर ज़हमत दी गई है और आप तशरीफ़ लाए, हम आपके मशकूर हैं। मीडिया के ज़रिए से हम ये बात अवामुन्नास तक और इंसानी हुकूक तक और मुसलमानों के हुकूक के लिए ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि देखिए, मुसलमान जो इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दिया है वो उसी तरह लोगों पर ज़ाहिर है जैसे सूरज की रोशनी सब पर ज़ाहिर है। मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए अपनी मोहब्बतों को, अपनी खिदमत को, अपनी कुर्बानियों को, अपनी जानों को पेश करके इस मुल्क में आज़ादी के वक्त हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुसलमान बड़ी शान के साथ, बड़ी इज़्ज़त के साथ इस मुल्क में रहते आए हैं। लेकिन अब जो नफ़रतों की सियासत चल रही है, जो नफ़रतों का माहौल रोज़ाना गर्म हो रहा है, जो आपस में हिंदुस्तानी शहरियों को नफ़रतों में बांटा जा रहा है, ऐसे वक्त में जो है ज़रूरत है कि हम इन नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए कोशिशें करें और आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत की बात करें। तो अब ऐसे वक्त में क्योंकि हमें ये बात कहने पर इसलिए जो है आपके सामने आना पड़ा क्योंकि अब हमारे रियासत तेलंगाना में एक्साइज डिपार्टमेंट के एक बहुत बड़े आला ओहदेदार IAS ऑफिसर सैयद अली मुर्तज़ा रिजवी साहब, जिन्होंने हाल ही में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, जब सोशल मीडिया के ज़रिए से, न्यूज़ेस के ज़रिए से, अखबारात के ज़रिए BRS कायदीन मोहम्मद सलीम और शेख अब्दुल्ला सोहेल ने मगंती सुनीता गोपीनाथ के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। भारत राष्ट्र समिति की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ की इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। साबिक MLC व साबिक सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और BRS के सीनियर रहनुमा शेख अब्दुल्ला सोहेल ने मगंती सुनीता गोपीनाथ के लिए हफ्ते को इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और भारत राष्ट्र समिति की उम्मीदवार को वोट देने और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की।
ریاست آندھرا پردیش کے کرنول میں پیش آئے خوفناک بس حادثے کے بعد کئی چونکا دینے والے انکشافات ہوئے ہیں۔ حیدرآباد سے بنگلور جا رہی ایک مسافر بس میں آگ لگنے سے کئی گھروں میں صف ماتم بچھ گیا۔ حادثے کے بعد کئی اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ حادثے سے جڑا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور شیوا شنکر نامی موٹر سائیکل سوار کو حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ وہ حادثے کے وقت شراب کے نشے میں تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ شیو شنکر نے بس کو ٹکر نہیں ماری تھی، بلکہ بس نے اس کی موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تھی اور اسے 300 میٹر تک گھسیٹا گیا تھا۔ آگ لگنے کے بعد بس روکے جانے پر ڈرائیور اور کلینر کو پانی کی بوتلوں سے آگ بجھانے کی کوشش کرتے دیکھا گیا، یعنی کہ بس میں آگ بجھانے کے آلات بھی نہیں تھے۔ بس کے نچلے حصے میں جہاں سامان رکھا جاتا ہے، وہاں پر تقریباً 200 موبائل فون رکھے گئے تھے۔ مسافر بس میں اتنے موبائل فون کیوں لے جائے جا رہے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید یہ موبائل فون ہی آگ کی شدت بڑھانے کا سبب بنے ہوں گے۔ مسافرین کو جگانے کے بجائے ڈرائیور کو موقع سے فرار پایا گیا۔ کئی مسافرین کی دھوئیں کی وجہ سے دم گھٹنے سے موت ہو گئی۔ بس میں صرف ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہی تھا۔ مسافرین نے اپنے ہاتھوں سے دروازہ توڑ کر اپنی جانیں بچائی ہیں۔ رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ بس نے متعدد مرتبہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی تھی۔ جنوری 2024 سے اکتوبر 2025 کے درمیان بس پر 16 مرتبہ چالانات عائد کیے گئے، جن کی کل رقم 23,120 روپے بنتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بس کئی بار اوور سپیڈنگ اور روٹ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی پکڑی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حادثے کے وقت بس بغیر درست فٹنس اور انشورنس کلیئرنس کے چل رہی تھی۔ RTO، پولیس اور بس کا مالک سبھی اس حادثے کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ جب بس نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں کی تھی تو محکمہ RTO نے کیوں کارروائی نہیں کی؟ جب چالانات ادا نہیں کیے گئے تو ٹریفک پولیس کیوں خاموش رہی؟ جب شیو شنکر کے شراب کے نشے میں گاڑی چلانے پر یہ حادثہ پیش آیا تو پولیس کہاں تھی؟ حالت نشہ میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ وی کاویری کے مالک کی جانب سے قانونی چارہ جوئی سے بچنے کے لیے کئی چالیں چلے جانے کا بھی پتہ چلا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ صرف ان کی زندگی اور ان کے مستقبل کی اہمیت ہے۔ بس میں سفر کرنے والے مسافرین اور موٹر سائیکل سوار کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ان کا نہ ہی کوئی مستقبل ہے۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے منشیال میں ایک ڈسٹرکٹ کوآپریٹو آفیسر کو 2 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ منشیال میں ڈسٹرکٹ کوآپریٹو آفیسر کو ACB کے عہدیداروں نے مبینہ طور پر ایک کوآپریٹو بینک کے ملازم سے 2 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا ہے۔ ACB کے عہدیداروں نے بتایا کہ DCO راٹھوڑ بکو کو اس وقت پکڑا گیا جب وہ کوآپریٹو بینک کے ملازم سے رشوت وصول کر رہا تھا۔ اس نے ملازم کے خلاف درج شکایت کو واپس لینے اور معطلی کی مدت کے دوران تنخواہوں کی ادائیگی اور انکوائری رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی نہ کرنے پر رشوت کا مطالبہ کیا تھا۔ ACB حکام نے بتایا کہ DCO نے ملازم کو ہراساں کرتے ہوئے 7 لاکھ روپے رشوت مانگی تھی اور بار بار درخواست کرنے کے بعد وہ 5 لاکھ روپے قبول کرنے پر آمادہ ہوا تھا، جس کے بعد متاثرہ شخص نے ACB سے رابطہ کیا اور ACB کے عہدیداروں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بکو کو کریم نگر میں ACB کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ نظام آباد میں شہید پولیس افسران کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک موٹر سائیکل اور سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ نظام آباد پولیس کمشنر سائی چیتنیا کی زیر نگرانی شہید پولیس افسران کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک پرجوش سائیکل اور موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی۔ پولیس یادگاری ہفتے کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر ریلی منعقد کی گئی تھی۔ ریلی کا آغاز پولانگ چوراہے سے ہوا۔ کمشنر سائی چیتنیا نے ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ACPs اور کئی سینئر افسران سمیت سائیکل سواروں نے ریلی میں حصہ لیا۔ شہر کے اہم راستوں سے گزرتے ہوئے ریلی نہرو سرکل پر اختتام کو پہنچی، جہاں ایک یادگار پر پھول چڑھائے گئے۔ کمشنر سائی چیتنیا نے بتایا کہ تمام رینک کے افسران نے اس ریلی میں شرکت کی اور اپنی
जानों का नजराना पेश करने वाले शहीद पुलिस अफसरान को खिराज पेश किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,